have a pleasure and a company of a very esteemed doctor. हमारे साथ है डॉक्टर अखिलेश अर्गल. He has completed his MBBS in 1989 and MD anesthesiology in 1992 from government colleges. He is a consultant anesthesiologist since 1993 and have conducted anesthesia cases for general surgery, orthopedic surgery, OB-GYN, ophthalmology, burns, plastic surgery, neurosurgery. He was an ex-registrar with the Jaslok Hospital, Bombay. He has been a coordinator for the Bhopal Accident Trauma Care. He was a Sloan, anesthesiology coordinator for camps of cleft lip and palate surgery by Dr. Dixit in USA. He's also visiting faculty at Disaster Management Institute, Bhopal, for first aid training for government and police officers. So we are, in an company of an extremely, special physician today. So initially, sir, I will be asking few questions on behalf of students, and उसके बाद, of course, students के questions होंगे, वो हम consider करेंगे, sir. So Sure. welcome again, sir, on the MOOC platform, sir. ये जो students है, इन्होंने अपनी NEET exam अभी appear की है, and they are going to very soon join a medical school either in India or medical colleges abroad. So they are future aspiring physicians, and they would like to get an idea about the career from your experience, sir. So, sir, of course, we'll start with the question and answer session. So the first question for you is, why did you choose to become an MBBS doctor? What was the motivation behind becoming an MBBS physician? What happened when I was a child? Whenever we used to get sick, we used to visit the hospital, and there we used to see the doctor in white apron with his stethoscope, and he is dealing with all the sick persons, and they are making them well. So initially, I used to thought that I should also become a doctor, because at that time also, and even now, the doctors are one of the most respectable segment in the society. And I thought that by becoming a doctor, I will be able to serve a lot than with any other profession. So from my school days, I had a thought that I will become a doctor. And then in my colony where I was residing, there was one bhaiya who was studying MBBS. So we used to have a role model in him that he has become a doctor. He's a very respectable person. He is doing a good job. And also he is earning a good amount. So all these things had a good impression on me. So when I reached my upper classes, where I had to choose my subjects, though I was good in maths, I decided to go for the biology stream, and then I became an MBBS physician. Ji, sir. Sir, so we will have students. Absolutely, sir. Yeah, we can hear you well, sir. Sir, so we will have students जो both English और हिंदी का mix prefer करेंगे. So of course, sir, the next, जी sir. Yeah. So sir, next question to you is, आपने anesthesiology क्यों choose किया? Why did you decide and when did you decide about कि आप anesthesiologist बनना चाहते? एनेस्थीसियोलॉजी चिराग ऐसा सब्जेक्ट है जो एमबीबीएस लेवल पे बहुत कम पढ़ा जाता है. बहुत एक छोटा सा पोर्शन रहता है एमबीबीएस के सिलेबस. तो जब तक हम एमबीबीएस लेवल पे पढ़ाई करते हैं, तब तक हमको एनेस्थीसियोलॉजी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता कि ये ब्रांच क्या है, इसमें क्या करते हैं. लेकिन जब हम अपने क्लिनिकल राउंड्स पे जाते हैं, जैसे जब हम सेकंड प्रोफेशनल और फाइनल प्रोफेशनल्स में सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, इनके क्लिनिकल राउंड्स पे रहते हैं, तो कभी कभी हमको मौका मिलता है ऑपरेशन थिएटर विजिट करने. जब हम ऑपरेशन थिएटर विजिट करते थे तो हम देखते थे कि हाँ, ये इनको एक टीम है, एक सर्जन की टीम है और एक टीम है जो ये मैनेज कर रही है. तो शुरू में ये लगता था कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, फिर ये पेन खत्म हो जाता है इसका, और जब ऑपरेशन खत्म हो रहा है तो वो इससे जाग रहा है और पेनलेस है.
तो ये सब बड़ा एब्स्ट्रैक्ट दिखता, समझ में नहीं आता था कि ये सब चीजें क्या करें, क्योंकि एमबीबीएस लेवल पे हम लोग ये सब चीजें दूर से देखते। फिर जब इंटर्नशिप मेरी चालू हुई तो उस समय जब मेरी सर्जिकल पोस्टिंग्स हुई तो मैं ऑपरेशन थिएटर में मेरी ड्यूटी लगी। तब मैं गया तो तब मैंने जो एनेस्थेटिस्ट थे उनसे बात करी कि आप ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी और देखी तो मुझे इसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं, ये एक ऐसी ब्रांच है जो बड़ी चैलेंजिंग, इसमें हर तरह की चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, हर तरह की सर्जरी करनी पड़ती है, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, राइट फ्रॉम दी नेटल से लेकर के ओल्ड एज तक के सब तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ, और फिर भी ये एनेस्थीसिया ये लोग देते हैं, तो इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग। और उसके साथ में ये हुआ, ये बात है, मैंने जब पीजी ज्वाइन किया उस समय दैट वाज 1989, उस समय क्रिटिकल केयर इंडिया में नहीं लेकिन विदेशों में, यूरोप एंड यूएस में क्रिटिकल केयर एक अलग स्पेशलिटी के रूप में उभरना चालू हो चुका। और जो लोग उस ब्रांच में जा रहे थे उनमें से कुछ फिजिशियंस थे जो मेडिसिन के बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन मेडिकल बैकग्राउंड के, मेडिसिन बैकग्राउंड के अलावा जो अधिकतर लोग उस फील्ड में वहां आ रहे थे वो लोग एनेस्थीसियोलॉजी से। हमारे इंडिया में उस समय भी हमको जो डिग्री मिलती थी वो मिलती थी एमडी एनेस्थीसिया, लेकिन वहां पे उस समय एमडी एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर चालू। मैंने क्रिटिकल केयर के बारे में पता किया क्योंकि ये एक इंटेंसिव केयर का ही थोड़ा सा और बड़ा रूप है। जब मैंने वो पता किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो ब्रांच है इट्स अ वेरी चैलेंजिंग ब्रांच, और हमको इसमें काम करने में एक थ्रिल है, और हम बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं जो दूसरी ब्रांचेस के लोग नहीं कर सकते। सो दैट आई कंसल्टेड सम ऑफ माय सीनियर्स जो लोग ऑलरेडी एनेस्थीसिया में थे, कुछ मेरे सीनियर्स थे जो उस समय यूएस जा करके अपना करियर परस्यू कर रहे थे। आई डिस्कस्ड विद देम and then I decided that this is the branch which I'm going to. Okay, Chirag? एब्सोल्युटली। सो बेसिकली जैसे कि स्टूडेंट्स सर बता रहे हैं कि क्लिनिकल रोटेशन जब आपके शुरू हो जाते हैं तो तभी आपको डेफिनेटली ऑब्जर्व करना है प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और उसमें आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज सर ने दी। नाउ ऑफ कोर्स व्हाट आर योर डेली रूटीन्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आपकी डेली रूटीन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? जैसे आपने बताया चैलेंजिंग फील्ड है तो कितना रिस्की होता है। बहुत लोग कहते हैं कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को हैज टू बी वेरी अलर्ट, तो आप कैसा रोल रहता है सर आपका? Yes, this is true that as an anesthetist you have the highest responsibility during the procedure. कोई भी प्रोसीजर में जो पेशेंट की हम कहें इनडायरेक्टली बात करें कि पेशेंट की जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेशन के दौरान सर्जन की ना हो करके एनेस्थेटिस्ट की हो। सर्जन का काम ऑपरेशन करना है, लेकिन एनेस्थेटिस्ट का काम है कि उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स को मॉनिटर करना और उनमें यदि कोई भी डिरेंजमेंट आ रहा है तो उसको मेंटेन करना। इस तरह से हम देखें तो ये जो रोल है वो निश्चित रूप से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, बहुत ध्यान से काम करने वाला। इसी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेसफुल भी होता है, लेकिन इस स्ट्रेस के साथ में एक थ्रिल है। जब आप कोई सा ऑपरेशन सक्सेसफुली करा लेते और जब वो ऑपरेशन खत्म होता है और आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से सेफली बाहर जाता है और वो ये कहते हुए अगर जाता है कि डॉक्टर मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि मेरा ऑपरेशन था, then it gives you immense pleasure. This pleasure you cannot get with any amount of the money which you get from some patient's compliments. तो ये रोल होता है। डेली रूटीन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस में हूं तो मैंने अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किए, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ में काम करता हूं धीरे धीरे काम करते करते एक हमारा रूटीन वर्क सेट हो गया। नॉर्मली आई स्टार्ट माई डे एट 10 o'clock and I work till 6 or 7. So this is my anesthesia routine. इसके साथ में मैं इंटेंसिव केयर या क्रिटिकल केयर का भी काम करता हूँ। मैं जो आईसीयू देखता हूँ उस आईसीयू में मैं तकरीबन 2 आवर्स देता हूँ। इन्हीं दौरान मैं 2 आवर्स क्रिटिकल केयर यूनिट जो है उसमें देता हूँ। वहाँ बाकी टीम है जो 24 आवर्स काम करती है, और इसके अलावा यदि उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे से कांटेक्ट
और जरूरत होती है तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं 10 to 7 संडेज नॉर्मली आई एम फ्री, बट यस समटाइम्स आई हैव टू गो इफ देयर इज एन इमरजेंसी, देन आई हैव टू। तो Yes. एनेस्थीसियो एक स्पेशलाइजेशन है जहां पर आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स। सर, इमरजेंसी जैसे केसेस की अचानक रात को जाना पड़े, ऐसा कुछ होता है ये फील्ड में या प्लान्ड Yes. होता है सारा सब कुछ? नहीं, प्लान्ड तो होता ही है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस करें, दो तरह की प्रैक्टिस हो गई, एक तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और एक हो गई फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस में यदि रात में आप पे कोई केसेस आते हैं तो या तो आपको जाना पड़ता है, या अगर आप कोई ग्रुप में प्रैक्टिस करें, नॉर्मली जो फ्रीलांसिंग लोग होते हैं वो एक ग्रुप में प्रैक्टिस करें, मतलब 3, 4 या 5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर के काम करते हैं कि कहीं पे केस आया, इफ आई एम बिजी देन आई विल कॉल समवन एल्स टू टेक ओवर दैट केस। तो जब इमरजेंसीज भी आती हैं तो वो शेयर हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि हर रात की इमरजेंसी कोई आई तो वो आप ही को अटेंड करें। और जो लोग इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं वहां पे रोस्टर वाइज नाइट ड्यूटीज लगती है। जो जूनियर फेज जब आप रहते हो तो आपको इंस्टीट्यूशन में रुकना पड़ता है, लेकिन जब आप थोड़े सीनियर हो जाते हो तो देन यू आर ऑन कॉल। तो आपको अगर इमरजेंसी आएगी तो यू विल बी कॉल्ड, देयर विल बी जूनियर टू असिस्ट यू, बट दैट रोटेशन कम्स से once in a week or once in a 15 days according to the number of anesthesiologists in that institution. एब्सोल्युटली सर। सर, आपने काफी पेशेंट्स देखे हैं, मैंने वही आपका जब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था, आपने बहुत सारी सर्जरीज भी अटेंड की है, तो सम ऑफ द मेमोरेबल केसेस जो आपने हैंडल किए जो आज भी आपको याद है कि क्रिटिकल थे बट यू कुड पुल इट ऑफ, तो इफ यू कैन डिस्क्राइब फ्यू ऑफ देम सर। ऐसे बहुत सारे केस हैं चिराग जो आपके जीवन में आपको कभी भूलते नहीं, है ना, ये लाइफ टाइम मेमोरीज में होते हैं। स्पेशली वो केसेस जिनमें अधिकतर लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होती है, होप छोड़ दी होती है कि पेशेंट सर्वाइव होगा कि नहीं, लेकिन आपने अपने एफर्ट्स जारी रखे एंड यू कुड सेव द पेशेंट। इसी तरह का एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। ये बात है तकरीबन 5 साल पहले की, 5 years बैक। एक हमारे पास 21 years का लड़का आया जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन का पेशेंट था। वो 4 दिन से घर पे था दर्द के साथ में, दैट मीन्स उसका जो इंटेस्टाइन परफोरेट हो चुकी थी, बर्स्ट हो चुकी थी, वो 4 दिन हो चुका। वो बिल्कुल अफोर्डिंग पेशेंट नहीं था, बहुत ही गरीब पेशेंट। वो जब आया इमरजेंसी में हम लोगों के पास में है तो उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा थी, उसका ब्लड प्रेशर तकरीबन नहीं के बराबर। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये यंग पेशेंट है, हमको इसमें अपनी जान लगानी चाहिए। तो हम लोगों ने पहले उसको, कहते हैं फ्लूइड रिससिटेशन कहलाता है, उसका ब्लड प्रेशर हम लोगों ने पहले मैनेज किया, बढ़ाया। फिर हमने उसको ऑपरेशन टेबल पे लिया। जब हमने उसको ऑपरेशन टेबल पे लिया और मैंने उसको एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया देने के 10 मिनट बाद में वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला। हम लोगों ने किसी तरह उसको रिवाइव किया, लेकिन 2 मिनट बाद में वो फिर से कार्डियक अरेस्ट में, उसको हमने फिर रिवाइव किया। इस तरह से करते करते हम लोगों ने 5 बार कोशिश की और वो हर बार दोबारा कार्डियक अरेस्ट में चला जाता। 6वीं बार हमने सोचा कि नहीं, ये अब हम लास्ट ट्राई करते हैं, अगर ये आ गया तो ठीक, और नहीं तो हम अपने एफर्ट छोड़ें। लेकिन भगवान की मर्जी थी, जब हम लोगों ने उसको 6th अटेम्प्ट किया तो वो वापस रिवाइव हुआ। उसके बाद हम उसकी सर्जरी कर पाए। भले ही उसके बाद वो 4 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, 16 डे वी वर एबल टू डिस्चार्ज हिम। और उसके बाद में जब वो ठीक हुआ तो उसने हम लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई तो मुझे हॉस्पिटल में ही कोई जॉब दे दीजिए। वो आज हमारे ही हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है और अब हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग देने की, कि वो पैरामेडिकल ट्रेनिंग ले ले और वो हमारे यहाँ पे ही काम कर सके। अब इस तरह की जो चीज़ होती है वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलती। जब भी वो मेरे सामने आता है मेरे मन में एक बहुत खुशी का भाव आता है। चिराग, Absolutely, that is very inspiring. In fact, ये बहुत important है students. Everything is not about money, but ये जो आप दूसरों के लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करते हो, that also is very important अगर आप मेडिसिन करियर कंसिडर कर रहे हो। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाउ अबाउट योर वर्क लाइफ बैलेंस? सर, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो फैमिली एंड वर्क, कैसे बैलेंस होता है सर? ये चिराग बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये मैं कहूँगा ये सिर्फ मेरी स्पेशलिटी की बात नहीं है, दिस स्टैंड्स फॉर गुड फॉर मोस्ट ऑफ दी स्पेशलिटीज।
कि जब आप अपना कैरियर चालू करते हो आप, तो इनिशियली आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो गड़बड़ होता है। उसका रीज़न ये होता है कि शुरू में आपको अपना ज़्यादा टाइम वर्क के लिए देना पड़ता है, और जो आपकी फैमिली होती है आप उसको कम टाइम देते हो। द रीज़न इज सिंपल दैट whenever you are new in the profession, you have to establish yourself. You have to prove yourself that you are capable and people should have confidence in you. लेकिन ये थोड़ा समय के साथ में आता है। जब आपका काम लोगों को दिखने लगता है, कुछ साल आपके हो जाते हैं, then people come to realize that you are a competent person. तो जो शुरू का फेज होता है वो किसी भी प्रोफेशन में, जैसा एनेस्थीसिया में, उसी तरह से दूसरे प्रोफेशन की तरह दूसरी जो स्पेशलिटीज हैं उसमें शुरू में वर्क आपका ज़्यादा है और आपकी फैमिली लाइफ जो है उसके लिए कम टाइम। बट विथ टाइम धीरे धीरे आप अपना वर्क का टाइम जो है वो एक लिमिट कर सकते हैं, एंड यू कैन गिव वैल्यूएबल टाइम टू द फैमिली। अब मैं जिस स्टेज में पहुंच गया हूँ, नाउ इट इज 27 years आई एम इन प्रैक्टिस, सो नाउ आई कैन गिव मच टाइम टू माई फैमिली एंड आई कैन हैव a very good balance between the work and life. Absolutely. So initial phase of your career, definitely you need to struggle, you need to work hard, and अगर आपने foundation career का अच्छा बना दिया, definitely success रहेगा and you will be able to balance. Correct है sir. So next of course आपकी जो specialization है anesthesiology, इसका डिमांड इंडिया और अब्रॉड में किस तरह का है? What do you feel about the demand sir? डिमांड बहुत ज्यादा है, इन्हें सप्लाई कम है मैं कहूँगा, डिमांड बहुत ज्यादा इंडिया में भी और अब्रॉड। उसका अगर थोड़ा टाइम हो तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहिए। Absolutely sir, please go ahead sir, please go ahead. ये बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो जितनी ब्रांचेस के हम बाकी नाम सुनते उनमें एनेस्थीसियोलॉजी कंपैरेटिवली सबसे नई ब्रांचेस। उसका रीजन ये है कि जब सर्जरी चालू हुई उस समय एनेस्थीसिया ब्रांच अलग से होती नहीं थी, और जो एनेस्थीसिया कहलाता था, जो हम फिल्मों में और बाकी चीजों में देखते हैं, क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया या ईथर एनेस्थीसिया कहलाता है, वो जो नर्सेज होती थी वो देती। देयर वर नो ट्रेन्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और ट्रेन्ड डॉक्टर्स। और काफी साल तक ये रहा, अराउंड समझ लीजिए 1940 तक ये रहा कि इसमें डॉक्टर्स बहुत कम थे, अधिकतर नर्सेज ही एनेस्थीसिया देते, टेक्नोलॉजी वाइज भी और मेडिसिन वाइज। तब ये एक डिमांड आई कि नहीं, ये जो काम है अब किसी क्वालिफाइड आदमी से ही कराया जा सकता है, तभी इसमें सेफ्टी बढ़े। तब जाकर के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना चालू हुआ। उसमें भी शुरू में लोग इसको पार्ट टाइम काम करते थे, कुछ देर एनेस्थीसिया करते थे, कुछ देर और, लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये एक फुल टाइम जॉब हुआ और अब जाकर के ये ब्रांच इस्टेब्लिश हुई। अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहां पे ऑपरेशंस कराने वाले लोग क्वालिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारे देश में अभी भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की जो डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई जो है वो 1/4 के करीब। अब्रॉड में भी यही चीज है, वहां पे भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हमेशा डिमांड में। आप जब भी कहीं पे जॉब वैकेंसीज की आप पोस्ट देखेंगे, उनमें आप हमेशा पाएंगे कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की पोस्ट हमेशा एडवर्टाइज, क्योंकि हर जगह पे उनकी कमी हमेशा बनी रहे। तो इसके लिए प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और साथ में अब ये हो गया है, सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजी नहीं रह गया, एनेस्थीसियोलॉजी जो ब्रांच है उसके साथ में अब 2 ब्रांचेस और जुड़ गई हैं चिराग। One of the branch is the critical care. Critical care means you will be working in the critical care unit or the intensive care units, ICUs जिनको हम कहते हैं, उनमें आप काम करेंगे। और एक और इसकी ब्रांच होती है जो कहलाती है पेन एंड पेलिएटिव मेडिसिन के, वो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही होते हैं। दे स्टडी a lot regarding the pain, and palliative means they will work with the persons who have got some cancer। उनकी लाइफ को आखिरी टाइम में हम ये जानते हैं कि इनको हम क्योर नहीं कर सकते, बट वी कैन मेक देयर लाइफ बेटर वन, उसको कहते हैं पेलिएटिव केयर। तो एनेस्थीसिया जो है इस समय, one part is anesthesiology, that means you are working in the operation theater. Another is the critical care medicine, you are working in the critical care unit. And then the pain clinic, some people run pain clinics और साथ में palliative care। तो इसके डाइवर्सिफिकेशन बहुत होता जा रहा है, इसलिए इसके प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। हम अगर
हॉस्पिटल्स के अंदर देखें तो शायद बहुत कम चीजें ऐसी हैं जहां एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, न सिर्फ ऑपरेशन में, उसके अलावा कई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की जरूरत। एग्जाम्पल जैसे दूं आपको, एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी कहलाती है, एक ERCP प्रोसीजर होता है, वो होता है। रेडियोलॉजी के कई प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें पेशेंट को हिलना डुलना नहीं है, पेशेंट पेन में है, उसके बिना हम उसका CT स्कैन, MRI नहीं कर सकते, वहां पे भी डॉक्टर की जरूरत होती है। फिर हम देखें, ऑब्स्टेटिक एनेस्थीसिया कहलाता है, पेनलेस लेबर जिसको हम कहते हैं, उसमें एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है। इस तरह से एनेस्थीसिया धीरे धीरे बहुत जगहों पे अपने पांव जमाता जा रहा है जहां पहले वो नहीं था। तो इनके साथ में एनेस्थेटिस्ट के प्रोस्पेक्ट्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। चिराग, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट था। नोबडी, आई एम श्योर, बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये इतना भी फ्यूचर हो सकता है, नोबडी वाज अवेयर। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छे से बताया है कि कितना अभी डीप जा रहा है। तो डेफिनेटली दैट वाज माय इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि और नया रिसर्च क्या हो रहा है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से कंबाइन किया है कि पैलिएटिव केयर एक पूरा डिफरेंट फील्ड आ रहा है, क्रिटिकल केयर तो ऑलरेडी था ही, बट तो वेरी, आई मीन, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड लग रहा है स्टूडेंट्स। सो यू शुड थिंक अबाउट दिस एज एन ऑप्शन। सर, रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है ये फील्ड में? रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 टाइप से। एक तो रिसर्च इस तरह से इंपॉर्टेंट है चिराग कि जिस पेशेंट को आप डील कर रहे हो, सो यू शुड नो ऑल अबाउट हिम, ऑल अबाउट हिज मेडिकल प्रॉब्लम्स, ऑल अबाउट हिज नॉर्मल फिजियोलॉजी, ऑल अबाउट हिज पैथोलॉजी, क्योंकि उसी के हिसाब से यू कैन प्लान योर एनेस्थीसिया। तो जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है, नई नई रिसर्चेज आ रही हैं मेडिकल फील्ड में, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद दैट। तो एक तो ये हो गया कि आप पेशेंट रिलेटेड जो आपकी फील्ड है उसकी रिसर्च से आपको जुड़े रहना है, और आपके जो डाटाज हैं वो आपको किन्हीं के साथ में शेयर करना, क्योंकि जो आपके डाटाज हैं उनको जब आप शेयर करेंगे दैट हेल्प्स इन रिसर्च। उसके साथ में आज का जो एनेस्थीसिया है, जो अगर हम आज की कोई टॉप एंड ऑपरेशन थिएटर्स देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हम किसी साई-फाई फिल्म के जो होते थे, जो स्पेस में हम लोग स्पेस क्राफ्ट देखते थे, कुछ उस तरह की चीजें होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ मशीन्स। जो एनेस्थीसिया मशीन कहलाती है, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन कहलाता है, वही आप देखोगे तो आपको इट्स वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि इट्स मोर ऑफ देयर आर सो मेनी गैजेट्स ओवर देयर, all sorts of these computers are there, monitors are there, ventilators are there, उन सबको आप यूज करते हो, और इनसे रिलेटेड जो भी आपके काम होते हैं ये कंपनीज आपसे उसको शेयर करना चाहती है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव फर्दर। तो ये जो चीजें हैं इनमें आपको हमेशा रिसर्च में आप इन्वॉल्व रह सकते हैं। उसके साथ में जैसा मैंने बताया, अभी क्रिटिकल केयर जब आप करते हैं उसमें भी बहुत सारा रिसर्च होता है। तो आप जो भी पेशेंट्स को डील करते हैं उनके डाटास में आप स्टडी करते हैं, आप उनको पब्लिश करते हैं, आप दूसरों के डाटास को अपने यहाँ यूज करते हैं। उसके साथ में पेन की हम बात करें तो पेन भी जो एक फील्ड है, पेन क्लिनिक्स एंड पैलिएटिव केयर, इट इज ऑल्सो अ वेरी न्यू इवॉल्विंग फील्ड। तो इसमें भी जो डाटाज होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनको कंपाइल करना, उनको पब्लिश करना, उनको शेयर करना, इन सब से हम दूसरों की तो मदद करते हैं और उनकी रिसर्च और उससे हम अपनी मदद करते हैं। तो इस फील्ड में भी जैसा मेडिकल फील्ड में पूरा अभी बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी वाइज, फिजियोलॉजी वाइज, फार्मेकोलॉजी वाइज, वो सब चीजों में आप भी इन्वॉल्व रहते हो, उसका फायदा भी उठाते हो, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर, आपने ऑलरेडी एड्रेस किया है, बट वापस ये जो यंग डॉक्टर जो आपकी बातें आज सुन रहे हैं, व्हाई शुड दे कंसीडर टू बिकम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट? व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाई शुड दे कंसीडर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट? तो जैसा मैंने अभी सब बताया आपको एनेस्थीसियोलॉजी के बारे में, इसकी कुछ कुछ जो सब ब्रांचेस हो गई हैं उनके बारे में, तो एक चीज कहूंगा कि ये जो ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी पेशेंट जो ऑपरेशन थिएटर में आता है और आपसे एनेस्थीसिया ले रहा है, आप ये समझिए वो अपनी लाइफ को आपके स्टेक पर रख, वो अपनी लाइफ आपके हाथ में दे रहा है, एंड यू हैव टू कीप दैट लाइफ सेफ। सो इट्स अ जॉब
with great responsibility. But then again, this responsibility comes with a thrill. When you complete that process of operation and when your patient goes well out of the theater, it gives you an immense pleasure. वो तो एक चीज है, ये ऑपरेशन थिएटर की है, नए नए टाइप के आजकल प्रोसीजर्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बहुत ही मोनोटोनस या बोरिंग ब्रांच है। इसमें कंटिन्यूसली नए नए टाइप के ऑपरेशंस आते हैं, तो नए नए टाइप के एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स इवॉल्व। जो भी नया प्रोसीजर आता है हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, और उसके साथ में हम एनेस्थीसिया को उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम उसके बारे में। नई नई मेडिसिन आजकल आ रही है, कई डिजीजेस की मेडिसिन आती हैं। यदि कोई पेशेंट उन डिजीजेस के लिए वो मेडिसिन लेता है, तो उन मेडिसिन का हमारे एनेस्थीसिया पे क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में भी हमको अपडेटेड रहना। उसके बाद में जो नए गजेट्स आते हैं, नए टाइप के मॉनिटर्स आ रहे हैं, नए टाइप के वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, नई टाइप की एनेस्थीसिया मशीन्स आ रहे हैं, नए एनेस्थेटिक एजेंट्स आ रहे हैं, इन सब के बारे में भी हमको अपडेटेड रहना, क्योंकि इन चीज़ों के कारण से हम हमारे पेशेंट्स की सेफ्टी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस पढ़ने वाली फील्ड है जिसमें आपको अपडेटेड रहना है पूरे टाइम। आप जब ऑपरेशन चलता है, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, आपसे कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए, क्योंकि इसमें इग्नोरेंस या आपके कोई सी चीज को ध्यान न देने का कोई स्थान ही नहीं है। यू हैव टू गिव योर 100% एवरी टाइम। तो ये सब चीजें जब लाइफ में आप करते हो, तो इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर एज वेल एज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसी के साथ में यदि मैं बात करूं क्रिटिकल केयर यूनिट में आपके रोल की, वहां पे आप डेली नए पेशेंट्स को डील करते हो, और उन पेशेंट्स में भी जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है, देयर इज अ चेंज इन द वाइटल पैरामीटर्स से एवरी नाउ एंड देन। एंड आप जो स्ट्रेटजी बनाते हो वो कोई 24 आवर्स की स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। यू हैव टू डील देयर नाउ एंड देन। उसी समय आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे ये क्या करना। सो इट with experience, it makes your judgment more critical and more quick. पेन में भी यही होता है, जब आप पेन के लिए आपका पेशेंट आता है, तो उसके साथ में जब आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ द पेन एंड पैलिएटिव केयर, क्योंकि जो पेशेंट है वो पेन में है, साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में है। आपको उसको इतना कॉन्फिडेंस दिलाना है कि वो ये बिलीव करे कि यू आर द वन हु इज गोइंग टू रिलीव हिम ऑफ हिज सफरिंग्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसको हम कहते हैं काउंसलर का रोल। भी एक एनेस्थेटिस्ट के लिए एज अ पेन एंड पैलिएटिव केयर एंड एज अ क्रिटिकल केयर एंड ऑल्सो एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव काउंसलिंग। सो ये सब चीजें आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा डॉक्टर बनने में मदद करती है। और इतना सब जो थ्रिल है, ये किसी और ब्रांच में एक साथ आपको नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत सारी ब्रांचेस इसमें इन्वॉल्व। इसमें हम देखें तो मेडिसिन भी इन्वॉल्व होती है, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, रेडियोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व, सर्जरी का भी कुछ पोर्शन हमको सब मालूम होना चाहिए। सो यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ मेनी फील्ड्स। कई बार होता है जब ऑपरेशन चल रहा होता है और सर्जन किसी इसमें फंस जाता है, because we have conducted so many operations of that sort, we could suggest the surgeon that try this one, and most of the time it clicks and they are out of the problem. तो ये ब्रांच आपको एक अलग तरह का रोल देती है, रिस्पॉन्सिबल बट चिराग। जी सर, एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपने आंसर किया कि एमबीबीएस के कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना है। तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। जी 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 सर। देखिए, सबसे पहले ये है आपका एनाटमी अच्छी होना चाहिए, है ना। एनाटमी क्यों अच्छा होना चाहिए कि जब आप पेन में ब्लॉक्स लगाते हैं ना, नर्व ब्लॉक्स कहलाते हैं, जिनमें हम नर्व में इंजेक्शन लगा करके उस नर्व को हम कंडक्शन कम करते हैं। तो अनलेस यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द एनाटमी, यू कैन नॉट कंडक्ट अ गुड नर्व ब्लॉक, है ना। फिर जब आपको फिजियोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमको नॉर्मल फिजियोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम उसकी एबनॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। उसके साथ में हमको फार्मेकोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज, जो पेशेंट
ड्रग्स लेता है उनका क्या असर उसकी बॉडी पे हो सकता है और क्या असर एनेस्थेटिक ड्रग्स पे हो सकता है। उसके साथ में जो एनेस्थेटिक ड्रग्स आई हैं उनकी फार्माकोलॉजी आपको पूरी मालूम, साथ में जो गैजेट्स हैं उनके बारे में पूरा आपको मालूम। रेडियोलॉजी में आपको एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन्स हैं, इनको रीड करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली मॉनिटर जाएंगे एग्जामिन करने के लिए तो आपको उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, जिससे कि आपका एनेस्थीसिया बेटर बन सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये सारी ब्रांचेस मेडिसिन की भी हैं। इवन आप ऑब्स्टेटिक का काम करते हैं तो आपको ऑब्स्टेटिक का नॉलेज होना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके फीटस के ऊपर कौन सी दवाई का क्या असर हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब ब्रांचेस को जब हम कंबाइन करें तब जाकर के एक अच्छा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनता है। चिराग सर सम क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा। Sure. सर डिम्पल पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इज द करियर, मतलब एमबीबीएस के बाद कितने साल लगेंगे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और आगे जाके कुछ मतलब फ्यूचर क्रिटिकल केयर या पैलिएटिव केयर करना है तो मतलब ड्यूरेशन कितना लगता है? ड्यूरेशन देखता है। ओके, ट्विंकल ये है कि आप एमबीबीएस के बाद में जो इंडिया में है वो हमारा 3 ईयर का एमडी होता है और 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। कई जगहों पे डिप्लोमाज नहीं है, लेकिन 2 ईयर का डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया है और 3 ईयर का एमडी इन एनेस्थीसिया। इसको करने के बाद में तो आप एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं। अब इसके बाद में यदि आप कुछ सुपर स्पेशलिटी कह लीजिए या सब स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, जैसे आप पेन एंड पैलिएटिव केयर का काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी 1 to 2 ईयर के स्पेशल कोर्सेज हैं, तो लोग उसको करते हैं। इसी तरह क्रिटिकल केयर के जो कोर्सेज हैं वो भी, उसके डिप्लोमाज भी हैं, उसकी डिग्रीज भी हैं, वो भी 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक के कोर्सेज हैं, फेलोशिप्स। तो आफ्टर एमडी जिस कैरियर में आप जाना चाहते हैं आप उसको परस्यू कर सकते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी में भी वंस यू कंप्लीट योर एनेस्थीसियोलॉजी, कुछ ब्रांचेस के लिए आपको स्पेशल कोर्स करना है। जैसे कि अगर आपको कार्डियक एनेस्थेटिस्ट बनना है, यानी जो हार्ट के ऑपरेशन कराता है, आपको वो बनना है, then you will have to either work for 1 or 2 years in some cardiac unit or you can go for the diploma in cardiac anesthesia। वो भी सब चीजें जो हैं वो 1 से 2 साल की। इसी तरह न्यूरो सर्जरी के लिए न्यूरो एनेस्थीसिया के भी 1 to 2 ईयर के कोर्सेज। इसी तरह ऑब्स्टेटिक एनेस्थीसिया जो कहलाता है, जिसमें पेनलेस लेबर आता है, उसके लिए भी 1 to 2 ईयर के कोर्सेज अवेलेबल हैं। या तो ये कोर्सेज कर सकते हैं या फिर उस तरह के यूनिट्स में कुछ टाइम काम करके हम अपने आप को इक्विप कर सकते हैं और इस लायक बना सकते हैं कि आगे हम उन सब स्पेशलिटीज में अपना कैरियर बनाएं। अब जैसे लिवर ट्रांसप्लांट्स चालू हो गए हैं, उसके एनेस्थीसिया के लिए, so you can work in some liver transplant unit for 1 to 2 years and then either you can absorb yourself there or you can pursue your career in some other। तो इस तरह से देखें तो आफ्टर योर कंप्लीशन 1 to 3 years इज द टोटल टाइम। बाकी कितना सेटल होने के लिए टाइम लगता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज, अपॉन योर एंथुजियाज्म, हाउ मच टाइम एंड एंथुजियाज्म यू पुट इन योर ब्रांच, हाउ मच यू रीड, हाउ मच यू परफॉर्म, ये आपके सेटल होने। सेटल होना इज अ मेंटल थिंग। हम अपने आप को कब सेटल होना मान सकते हैं, इट मे बी डिफरेंट फॉर different persons, but yes, salary wise it is a good branch, you get good salaries। इंडिया से भी ज़्यादा अगर हम बाहर की बात करें, बाहर एनेस्थेटिस्ट आर द हाईएस्ट पेड डॉक्टर्स। जितनी रिस्क उसी हिसाब से पेमेंट। हमारे यहाँ पे भी जो अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं या जिन्होंने अपना अच्छा एक्सपर्टीज बना लिया है, उनको कभी रेम्यूनरेशन का प्रॉब्लम नहीं। जी सर, बहुत डिटेल में इनफैक्ट आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर कर दिए एंड आई अंडरस्टैंड द टाइम कंस्ट्रेंट। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बिफोर वी कुड एंड दिस सेशन। सर क्वेश्चन ये है कि यश कह रहे हैं कि सर इज इट नॉट अ रिस्की फील्ड, मतलब एमबीबीएस में सबसे रिस्की फील्ड लग रहा है, तो क्या रिस्क नहीं है ये करियर में? वो पूछ रहे हैं सर। अब यह है यश की, यदि बहुत ही सेफ चलना चाहते हो तो शायद हमको डॉक्टर ही नहीं बनना चाहिए पहली बार, क्योंकि अगर हम डॉक्टर बने हैं तो हमें रिस्क तो लेना आना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क हम किस के लिए ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अ ब्लाइंड रिस्क।
whatever risk you are taking for the benefit of the patient, क्योंकि जब आप वो रिस्क लेकर के काम करते हैं तभी उस पेशेंट को वो बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम, या समझिए ये रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, तो इस तरह के ह्यूमंस को हम कैसे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें? तो रिस्क है, लेकिन अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, अच्छे से हमारी ट्रेनिंग हुई है, और अगर हम खुले दिमाग से कोई काम करेंगे, और आजकल के समय में जैसे जैसे नई मेडिसिन आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ में मॉनिटर्स आ गए हैं, पेशेंट की सेफ्टी बढ़ गई है, तो वो रिस्क कम है। लेकिन रिस्क बहुत सारी ब्रांचेस, इट कैन बी विद द मेडिसिन आल्सो, यू आर डीलिंग विद पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक, सो यू आर आल्सो एट रिस्क ट्रीटिंग हिम। तो रिस्क सब जगह है, लेकिन रिस्क के साथ में इसमें जैसे मैंने कहा सेटिस्फेक्शन भी है और एक थ्रिल है लाइफ में। सो इफ समवन वांट्स टू गेट दैट, वी शुड डेफिनेटली गो। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंस्पिरेशनल ये सेशन रहा है सर। वही है, ऑन बिहाफ ऑफ मोक्ष एकेडमी एंड द स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू। स्टूडेंट्स आर आल्सो थैंकिंग यू सर, काफी अपडेट मिला है एंड काफी नॉलेज मिला है, एंड डेफिनेटली अगर फ्यूचर में भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वी विल लाइक टू have you on board for these sessions, sir. Sure, right? Chirag. Thank you, sir. sir. Interacting with you, and all the best to all the students who are pursuing different careers. I wish them good luck. Thank you. Thank you, sir. I will end this session. Thank you, students.